Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss another important topic of organic chemistry, which is homolytic and heterolytic fission of a covalent bond. For example, जब कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो लाजिम सी बात है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीक़ों से ब्रेक होता है, या तो ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा या हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा। तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और ईटा के एमसीक्यूज़ भी इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हाउ अ केमिकल बॉन्ड a covalent bond will break homolytically or heterolytically। और ये ज़रूरी नहीं है कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमेशा या होमोलिसिस करेगा या हेट्रोलिसिस करेगा। It will depend on the situation. So let's discuss the breaking of a covalent bond in such a way that both the partner or both the bonded atoms get one electron each is called homolysis, which results the formation of free radicals. So students, when a chemical bond, a covalent bond breaks in such a way that both the partner atoms get one electron each, such breaking of a covalent bond is called homolysis or homolysis. For example, if we take the example of chlorine, which is a non-polar molecule, and here is a single covalent bond between two chlorine atoms, so obviously this type of arrow, student, shows the shifting of one electron, and this type of arrow shows the shifting of how much? Two electron. So if the bond breaks such a way, lazimi si baat hai, both the chlorine atoms will get one electron each from this bond pair, and results the formation of what? Free radical. Those chemical species which have unpaired electron are called what? Free radical. So it means the homolytic fission of a covalent bond form the formation of high reactive species which are called free radicals, while heterolysis of a covalent bond results the formation of electron deficient and electron efficient species which is called electrophile and nucleophile respectively, in which mostly the electronegative part attract the bonded pair to form a nucleophile, while the electropositive part form what? Electrophile. So if the bond breaks such a way that both bonded electrons are shifted to the most electronegative part of a molecule, for example, as we know in HCl there is a polar covalent bond, but as we know chlorine is more electronegative, so this type of arrow shows the shifting of how much? Two electron. And if the bond break in such a way that both the bonded electron shifted towards chlorine, so obviously hydrogen will form in the form of hydrogen ion, which is electron deficient, which is called electrophile, and the chlorine is formed in the form of chloride ion, which is electron efficient and which is also nucleophile, and here it is electrophile. So it means normally the fission of a covalent bond by hydrolysis results the formation of electrophile and nucleophile, while homolysis of a covalent bond form the formation of what? Free radical. But student, most important thing is that, which is to be noted, that it is not always happen that a non-polar molecule breaks homolytically and polar breaks heterolytically. तो स्टूडेंट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर नॉन पोलर है, बोथ एटम है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये ज़रूर होमोलिसिस करेगा या ये ज़रूर हेट्रोलिसिस करेगा। इट विल डिपेंड ऑन द कैटलिस्ट यूज, इट विल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ अ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए कि ज़रूरी नहीं है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमेशा फ्री रेडिकल बनाएगा और पोलर मॉलिक्यूल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, इन विच यू नो दैट मैंने बेंजीन के मुतालिक 5-6 वीडियोज़ बनाई है, अब वो देख ले तो फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन भी उसमें है। दैट फॉर एग्जांपल, when benzene reacted with chlorine in the presence of aluminium chloride as a catalyst, so we will get chlorobenzene and plus HCl. So it is called it is called the chlorination. It is called the chlorination of benzene, so which is electrophilic substitution reaction. प्राइडल-क्राफ्ट इसके बाद मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लोरीन है एंड वी नीड इलेक्ट्रोफाइल। As we know, aluminium chloride is Lewis acid, which is electron deficient. So ये क्लोरीन को इस तरह ब्रेक करेगा
कि ये क्लोरीन को विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो स्टूडेंट आप नोट करें कि यह तो क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। सो होना तो ये चाहिए कि बोथ पार्टनर गेट वन इलेक्ट्रॉन ईच, बट हियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट विच इज़ अ लेविस एसिड यूज एज अ कैटलिस्ट, यह हो तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करेगा, बल्कि ये क्लोराइड आयन को विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करेगा एंड वी विल गेट AlCl4 एंड क्लोरोनियम आयन, एंड दिस क्लोरोनियम आयन will be added to the benzene ring because ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, तो ये क्लोराइड यहाँ पर ये रिप्लेस करेगा। ये मैंने डिटेल में फिर बेंजीन के एग्जांपल्स में मैंने डिस्कस किया है विच इज़ द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्लोरीन क्या है, नॉन पोलर, बट यहाँ पर होमोलिसिस नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, हेट्रोलिसिस। तो ये ईटा इंडिकेट दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है दैट द क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन विच इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन विच एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज एज अ कैटलिस्ट। ये ईटा 2017 के क्वेश्चन में भी आया है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये लीविस एसिड है और ये कैटलिस्ट है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद है इस रिएक्शन के एल्यूमिनियम क्लोराइड में। सो हालांकि क्लोरीन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बट स्टिल यहाँ पर होमोलिसिस नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, हेट्रोलिसिस, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ व्हाट, एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट। सो इससे हमें ये पता चल गया कि ज़रूरी नहीं है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमेशा होमोलाइज करेगा, होमोलिसिस करेगा, और पोलर हमेशा हाइड्रोलिसिस करेगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ प्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की। गलती में मैंने पहले वाले को प्राइडल-क्राफ्ट लिख दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, व्हेन इट रिएक्टेड विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो आपको पता है कि दिस इज कॉल्ड प्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, वी विल गेट टॉल्यूइन एंड दिस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ HCl। तो स्टूडेंट अगर आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करें तो यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि यहाँ पर ये क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर होमोलिसिस होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हाइड्रोलाइज हुआ था। यहाँ तो ये पोलर है, तो लाजिमी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। सो AlCl3 प्लस CH3Cl, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विद क्लोराइड आयन अट्रैक्ट करेगा, वी विल गेट AlCl4 एंड कार्बोनियम आयन, और ये कार्बोनियम आयन फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए यूज होगा टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म टॉल्यूइन। तो ये तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल पोलर है, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने रिएक्शन डिस्कस किया वहाँ पर मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम क्लोराइड की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर हाइड्रोलिसिस हुआ। नाउ लेट्स डिस्कस, अब हम एक और रिएक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर होमोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो स्टूडेंट एक रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन, और ये हमारे कोर्स में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की प्रिपरेशन में ये मौजूद है, वर्ड्स रिएक्शन इन विच अल्काइल हैलाइड react with sodium to form alkane CH3 and सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर ये सोडियम क्लोरीन के साथ इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके क्या बनाएगा, ईथेन बनाएगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक टू द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर है 2 molecules of methyl chloride and we have 2 sodium. So obviously यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि सोडियम यहाँ पर ये क्लोरीन बॉन्ड पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर सोडियम इज द मेंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, तो लाजिमी सी बात है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो ऑब्वियसली यहाँ पर थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, हाइड्रोलिसिस, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो द बॉन्ड शुड ब्रेक बाय हाइड्रोलिसिस। बट अगर ये यहाँ पर हाइड्रोलाइज करेगा, क्लोराइड आयन निकालेगा, तो फिर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा,
क्लोराइड आयन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, सो ऑब्वियसली देयर इज नो नीड ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑब्वियसली क्या होगा, होमोलिसिस। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, मिथाइल कार्बन की तरफ। तो कार्बन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या बनाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। यहाँ पर क्या बनाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। एक मिथाइल फ्री रेडिकल यहाँ से बनेगा प्लस अदर मिथाइल फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके क्या बनाएगा, C2H6। और दोनों क्लोरीन यहाँ से किस फॉर्म में रिमूव होंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल, नॉट क्लोराइड आयन, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ हाइड्रोलिसिस, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फ्रॉम सोडियम टुवर्ड्स क्लोरीन। तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन देंगे एंड वी विल गेट व्हाट, सोडियम क्लोराइड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमको ये अंदाज़ा हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोलिसिस होगा और हमेशा नॉन पोलर में होमोलिसिस होगा। इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्शन, ऑन द यूज़ ऑफ कैटलिस्ट एंड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम थियोरेटिकली इसको देखें कि अगर आपके पास ईटा में ये क्वेश्चन आया है कि अल्काइल methyl chloride react with sodium to form ethane and sodium chloride, the bond between carbon and halogen breaks by which method, homolysis or hydrolysis। तो अगर हम स्टूडेंट हमारे पास कंसेप्ट नहीं है तो हम ऑब्वियसली कहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोलिसिस, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। लेकिन अगर क्लोरीन यहाँ से क्लोराइड की शक्ल में निकल गया तो फिर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, तो फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और अगर अब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर भी कार्बोनियम आयन बन जाएगा, यहाँ पर भी कार्बोनियम आयन, तो दोनों कार्बोनियम आपस में किस तरह फिर ईथेन बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर होमोलिसिस हुआ है, देयर इज नो हाइड्रोलिसिस। थैंक यू।